Please. Please. Good evening, everyone. A warm welcome to all of you joining us for the sixth session of Dehri Dialogues, our monthly webinar series dedicated to addressing contemporary concerns in higher education. It is wonderful to see how this series has grown, receiving a warm and encouraging response from faculty, students, counselors, and education professionals across institutions. Your engagement is what keeps this platform vibrant and meaningful. Before we begin today's session, it is important to acknowledge the rich journey Dehri Dialogues has taken so far. We began with our first session on building resilience, preparing future graduates for uncertainty, change, and complexity in a disrupted world by Dr. Divya Singhal, which set the tone for our focus on student well being and preparedness. Our second session, Making Students Think, by Professor Jayanti Datta, encouraged us to reimagine pedagogies that stimulate curiosity and critical thinking. The third session, AI in Education, a double-edged sword, by Dr. Priya Ranjan, engaged us in a timely conversation on balancing technological innovation with ethical responsibility. The fourth session, Teacher Burnout, by Ms. Sanjoli Chimni Pandey, opened up a much-needed space to talk about educator well-being and institutional care. And most recently, the fifth session on faculty as career coaches and lifelong mentors, delivered by Dr. Vandana Gambhir, helped us reflect on the evolving role of teachers in shaping students' futures. Each session added a vital layer to our collective understanding of the challenges and possibilities in higher education today, and it brings us perfectly to the focus in our discussion this evening. Today, we address an issue that is increasingly shaping the lives, behaviors, and well being of young people across the world, dealing with digital addiction among youth. In an era where the digital world is deeply embedded into learning, social interaction, entertainment, and identity formation, the line between healthy engagement and compulsive overuse has become blurred. Digital addiction affects attention, emotional health, academic performance, sleep quality, and even interpersonal relationships. As educators, counselors, and mentors, we carry the responsibility of understanding this phenomenon deeply and responding to it with empathy and informed strategies. We are privileged to have with us Dr. Anupama Maheshwari, Director of Aadhaar Counseling and Therapy Center, Act to Enable Bhopal. With her extensive experience in counseling, therapeutic interventions, and youth well being, she brings both expertise and grounded insight to this conversation. We look forward to learning from her about the psychological roots of digital dependency, its behavioral consequences, and practical evidence based approach for prevention and intervention. The session is timely and important as institutions everywhere seek to balance the benefits of digital tools with the growing concerns around screen overuse and digital fatigue. To all participants joining us today, thank you for your continued engagement, curiosity, and commitment to fostering healthier, more aware, and supportive learning ecosystems. With great pleasure, I invite you to listen deeply, engage thoughtfully, and carry the insights from today's conversation into your classrooms, practices, and communities. Let me now request our principal, Dr. Sachin Kumar, to welcome and introduce our speaker, Dr. Anupama Maheshwari, and to lead us to this important conversation. थैंक यू कामाक्षी जी। मैं अपनी तरफ से और अपने पूरे महाविद्यालय परिवार की तरफ से डॉक्टर अनुपमा माहेश्वरी जी का स्वागत करता हूं। अनुपमा जी कई वर्षों से नोन है, हम लोगों ने मिलकर भी कई काम किए हैं और आगे भी हम लोग इस पे करने वाले हैं। ये कोई 20-25 वर्षों से काउंसलिंग और साइकोथेरेपी के क्षेत्र में काम कर रही हैं। इनकी संस्था सेंट्रल इंडिया की पायनियरिंग इंस्टीट्यूशन है। आज से 20-21 साल पहले जब मेंटल हेल्थ काउंसलिंग और उन इश्यूज पे उतना काम नहीं था, तो इन्होंने और दो इक्वली इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स के साथ मिल करके इन्होंने इस संस्था की आधारशिला रखी और नाम भी इन्होंने इसका आधार रखा और आज ये बहुत ग्रो कर गई है संस्था। और मैम से जब आप मिलेंगे, आप उनकी बात सुनेंगे तो हमें लगता है कि जो टेक्स्ट बुक में हम एक आइडियल काउंसलर
के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते पढ़ाते रहे हैं, तो यू वुड सी all that exemplified in her personality. And she has been active, as I said, in this sector for many years. Recently, under her leadership, her organization started a very important initiative on digital health. And as a first step, they have developed a very useful tool to assess digital health of people. And I have also been fortunate enough to be a part of that project indirectly though. और मुझे लगा जब मैं उसमें हम बात कर रहे थे कि ये तो हमारे टीचर्स के लिए भी बहुत क्रिटिकल है कि हम एक तो अभी जब मैंने ये अपने प्रिंसिपल्स ग्रुप में ये शेयर किया तो एक प्रिंसिपल ने मुझसे कहा कि यू शुड आल्सो रिक्वेस्ट हर, बिकॉज हमारा टॉपिक था डिजिटल एडिक्शन अमंग यूथ. उन्होंने लिखा कि प्लीज आस्क हर टू टॉक अबाउट डिजिटल एडिक्शन अमंग नॉट सो यंग एज वेल. तो ये सिर्फ यूथ का इशू नहीं है, एक ह्यूमैनिटी का इशू है. मुझे ऐसा लग रहा है हर एज ग्रुप इससे अफेक्ट हो रहा है. तो हमने ये रखा है कि स्टूडेंट्स को हम कैसे असिस्ट कर सकते हैं, और किसी भी असिस्टेंस के लिए क्रिटिकल है कि पहले यदि हम खुद उसमें एडिक्ट हैं जो भी वजह से, तो पहले हम अपने आप को डील करें और फिर तो मतलब कहीं ना कहीं जो इशू है वो एलिफेंट इन द रूम वाला सिचुएशन है कि वी आर ऑल अवेयर ऑफ दिस प्रॉब्लम बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट, वी आर नॉट deliberating about possible solutions. So thank you very much, ma'am, for being with us, and it's all yours. Please carry on. Thank you so much, sir, इतने kind words के लिए. थोड़ा सा आज गला खराब है तो पहले ही माफी मांग रही हूँ. तो डेफिनेटली जो टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत पुराना नहीं है. आई थिंक लॉकडाउन और कोविड के बाद से इस डिजिटल और स्क्रीन डिपेंडेंसी में हम एक बूम सा आया है. आप लोग सब मेरी बात से एग्री करेंगे, राइट? इट इज नॉट अबाउट टीचर्स, इट इज नॉट अबाउट पेरेंट्स, इट इज नॉट अबाउट जस्ट वन फैकल्टी, बट इट इज अबाउट ओवरऑल. जैसे हमारी कम्युनिटी इफेक्ट हो रही है इससे, आज हम उसी के बारे में बहुत लाइटली बट बहुत सीरियस थॉट्स करने वाले हैं. तो थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करते हुए चलेंगे बिकॉज ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं नया बता रही हूँ आपको. आई थिंक हम लोग अपने घरों में या अपनी क्लासेस में इन चीज़ों से रोज ही जूझते हैं. अगर बात करें घर में सबसे ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स किस वजह से हो रही हैं आजकल? होमवर्क नहीं करने से, ज़्यादा टीवी देखने से, या ज़्यादा मोबाइल पे रहने से. वेदर इट इज़ बिटवीन पार्टनर्स, हस्बैंड वाइफ, वेदर इट इज़ एनी, जैसे सर ने बोला कि बड़े लोगों में भी उतना ही है, बच्चों के साथ. तो सबसे ज्यादा अगर घर में आर्ग्यूमेंट्स हैं तो किस चीज की वजह से हो रही है? लेट्स कीप इट इंटरैक्टिव. ओके, चलिए मैं आंसर दे देती हूँ. एग्री कीजिएगा थम्स अप के साथ. सबसे ज्यादा फाइट्स अभी जो हो रही हैं घरों में, दैट इज बिकॉज ऑफ ओवर स्क्रीन यूसेज. एग्रीइंग, थम्स अप दे सकते हैं? नाइस, थैंक यू. तो होमवर्क, टीवी कभी की बात थी, लेकिन आज जो घर घर की बात है वो स्क्रीन यूसेज है. और मैं ये बताऊं, यूथ की नहीं, न्यू बॉर्न बेबीज से लेके ओल्ड एज तक की. सो इट इज नॉट अबाउट जस्ट द यूथ, बट हमारा टॉपिक यूथ से है. बट मैं आपके साथ केसेस शेयर करूंगी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आए थे. तो शुरुआत बच्चों के पैदा होने से ही हो रही है. बहुत घरों में एक और एक मोनोलॉग आप सुनते होंगे कि बस 5 मिनट और, बस बस मम्मा बस 5 मिनट और, अभी बस छोड़ देता हूँ, अभी छोड़ देती हूँ, बस 5 मिनट और दे दो बस मुझे. स्कूल जाने में लेट हो रही है, बस जाने वाली खड़ी है लेकिन बच्चा स्क्रॉल कर रहा है. तो बस 5 मिनट और इज अगेन अ वेरी गुड कैंपेन, ये जो हमारे मन में और घरों में रन हो रहा है. तो जो एक कॉमनली चीज हमारे घरों में चुपचाप से आ गई है आफ्टर कोविड, लेकिन बच्चों के दिमाग में, हम लोगों के दिमाग में बहुत घर कर चुकी है. और पूरी की पूरी जनरेशन, यूथ हो या कोई भी जनरेशन हो, इससे इफेक्टेड है. दैट इज डिजिटल ओवर स्क्रीन, ओवर यूसेज, काफी हद तक एडिक्शन भी. तो क्या हम कहें डिजिटल या टेक्नोलॉजी गलत है? आप लोग एग्री करते हैं कि ये जो सब हो रहा है, ये एकदम बूम जो हुआ है वो गलत है? अनिष्का इज सेइंग इट इज रॉन्ग, रितुल इज आल्सो सेइंग इट इज रॉन्ग.
तो मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि टेक्नोलॉजी बिल्कुल गलत नहीं है। अगर हम टेक्नोलॉजी के हिसाब से नहीं जाएंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। लेकिन जब टेक्नोलॉजी हमें कंट्रोल करने लगे, हमारे इमोशंस को कंट्रोल करने लगे, हमारी बिहेवियर और आइडेंटिटी को कंट्रोल करने लगे, तब प्रॉब्लम शुरू होती है। तो आज का सेशन सिर्फ हमारा बहुत सिंपल है, क्या हो रहा है, कैसे इसको समझें और हम क्या कर सकते हैं, दैट्स ऑल। इसके अलावा कुछ भी नहीं। क्या हो रहा है सर, नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। क्या हो रहा है बहुत हम सबको ही पता है। आप लोग खुद ही बताइए, आज के बच्चे पहले क्या सीखते हैं? छोटे बच्चों की मैं बात कर रही हूँ, बोलना या स्वाइप करना? स्वाइप। ओके, मैं ही आंसर दूंगी, स्वाइप करना। ओके, आशिका इज सेइंग स्वाइप करना, विच आई थिंक सब लोग एग्री करेंगे। छोटे से बच्चे जो कि आई थिंक 3 to 4 मंथ्स के हैं, आप उनको देखिए, उनके फिंगर्स कैसे टेक्नोलॉजी, कैसे डिवाइसेस के ऊपर चलती है। तो वो बोलना बाद में सीखते हैं, लेकिन स्वाइप करना पहले। तो किसी भी बच्चे का पहला प्लेग्राउंड क्या है? उनका प्लेग्राउंड उनकी मोबाइल स्क्रीन है। उनकी आइडेंटिटी क्या है? उनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल। बच्चों का नहीं, हमारी भी कहूंगी मैं। उनकी सेल्फ वर्थ क्या है? कितने लाइक्स मिले, कितने कमेंट्स मिले, ये उनकी सेल्फ वर्थ है। यानी कितनी लाइट हमारी सेल्फ वर्थ हो गई है कि लोगों के वैलिडेशन के ऊपर हमारी सेल्फ वर्थ डिपेंड करती है। उनका मूड नोटिफिकेशन के हिसाब से, अगर आज नोटिफिकेशंस अच्छे आ गए तो हैप्पी मूड है, नोटिफिकेशन अच्छे नहीं आए तो उनका मूड खराब हो जाता है। तो स्क्रीन्स हमारी आइडेंटिटी नहीं बना रहे हैं, हमें वैलिडेशन ही नहीं दे रहे हैं, बल्कि हमारा कोपिंग मैकेनिज्म भी हो गए। बोर हो रहे हैं तो फोन उठा लीजिए, दुखी हो रहे हैं तो फोन उठा लीजिए, स्ट्रेस में है तो फोन उठा लीजिए, लोनली है तो फोन उठा लीजिए, खुश है तो फोन उठा लीजिए, क्योंकि वो कैप्चर करना है इंपॉर्टेंट मोमेंट्स। सो ये आज हमारा कोपिंग मैकेनिज्म भी हो गया है। यानी जस्ट सी हाउ मच वी आर डिपेंडिंग ऑन टेक्नोलॉजी। तो डेफिनेटली इट इज टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब हम इसमें अनरेगुलेटेड डिपेंडेंसी दिखाते जा रहे हैं, जब इसकी कोई लिमिट नहीं रह रही है, तब ये एक प्रॉब्लम होती जा रही है। तो अगर आप लोग फिर से, मैं इंटरेक्ट करने एक बार इंट्रोस्पेक्ट करने की बात करूंगी, जरूरी नहीं है आप शेयर करें। जैसे मैंने बोला, कोपिंग मैकेनिज्म, बोर होना, सैड होना, स्ट्रेस होना, हैप्पी होना, लोनली होना, आप लोग कौन कौन से इमोशंस में ज्यादा होते हैं, तब आप ये फटाफट से फोन उठाते हैं? 2 मिनट इंट्रोस्पेक्ट कीजिएगा। आई एम वेरी श्योर कि आप सारे ही जो मैंने पूछा है ना, उन सबके आंसर आपके यस होने वाले हैं, क्योंकि हम हर केस में सबसे पहले फोन उठाते हैं। तो ये अनरेगुलेटेड जो डिपेंडेंसी हमारी होती जा रही है, वो हमारे लिए एक बहुत गड़बड़ की चीज हो रही है, वो हमारा एडिक्शन की तरफ जा रही है। क्यों मैं ये बात कह रही हूँ? क्योंकि हमारे पास कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग केसेस इस प्रकार से आए पोस्ट कोविड, जिसको एक्चुअली जिन्होंने हमें झंझोर दिया बेसिकली, क्योंकि हम काउंसलिंग की फील्ड में बात करते हैं, मेंटल हेल्थ की फील्ड में काम करते हैं। तो जब वो इस प्रकार से केसेस आए स्कूल से, टीचर से, काउंसलर से, तो हमको समझ ही नहीं आया कि ये करना क्या है। मैं डेफिनेटली आपके साथ कुछ 2-3 केसेस शेयर करना चाहूंगी। सर नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे प्लीज। सबसे पहला केस हमारे पास आया था, एक 4 साल का बच्चा, आई थिंक 22 में 2022 में आया था। बच्चे के साथ प्रॉब्लम ये थी कि वो बात नहीं करता था, वो आई टू आई कांटेक्ट नहीं बना रहा था, और उसको मतलब कुछ भी कहो तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करता था। अब सिर्फ 4 साल का बच्चा है। हाँ, ये सारी जब चीजें वो किसी पीडियाट्रिशियन के पास पेरेंट्स लेके गए, तो पीडियाट्रिशियन को ये सारी जब आप बातें सुनोगे ना, ये सारे सिम्टम्स सुनोगे कि बात नहीं करता, आई कांटेक्ट नहीं करता, रिस्पॉन्ड नहीं करता। इतने इंस्टाग्राम पे अगर आप फीड्स देखते होंगे तो ऐसे बच्चों को तुरंत बोल दिया जाता है कि उसको ऑटिज्म है। जब वो बच्चे को हम आधार में आया और उसका अच्छे से पूरा असेसमेंट्स किए गए, तो ये देखा कि उसको बिल्कुल भी ऑटिज्म नहीं था, लेकिन वो बच्चा 6 से 8 घंटे स्क्रीन पर था, 4 साल का बच्चा। क्योंकि पेरेंट्स अपना कोविड के बाद हमारे एक नया कॉन्सेप्ट और शुरू हो गया है, विच इज घर पे भी स्क्रीन पर बैठना। पेरेंट्स पूरे टाइम घर पे काम कर रहे हैं बट स्क्रीन पर हैं, तो बच्चों से बात ही नहीं हो रही है। तो बच्चे ने भी अपने लिए क्या ढूंढा?
6 to 8 आवर्स उसको भी स्क्रीन थमा दी गई। दादी अपनी बिजी, दादा अपना बिजी, पेरेंट्स अपने बिजी, कोई प्ले ग्राउंड नहीं। बच्चे ने बोलना ही नहीं सीखा जिस उम्र में उसको बात करनी थी, या इमोशंस जिस उम्र में उसके बनने शुरू हुए थे वो हुआ ही। तो 6 to 8 आवर्स की स्क्रीन ने उस बच्चे को म्यूट कर दिया। और वो म्यूटिज्म, अगर वो पीडियाट्रिशियन ने असेस मतलब रिफर करा, थैंक गॉड कि किसी ऐसे बंदे के पास नहीं भेजा कि उन्होंने डिक्लेयर ही कर दिया कि ऑटिज्म है बच्चे को। लेकिन इस प्रकार का स्क्रीन ऑटिज्म अब बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ये केस 2022 में तो फर्स्ट था, बट दिस इज इंक्रीजिंग एवरी टाइम। अलार्मिंग इसलिए है कि अगर वो कहीं सही जगह नहीं आता है तो उसको ऑटिज्म मानकर और उसका ऑटिज्म के से रिलेटेड उपचार शुरू कर दिया जा सकता है। सो देन पेरेंट्स के साथ इंटरवेंशन किया गया एंड अभी वो बच्चा कहेंगे नहीं कि पूरी तरीके से वो स्क्रीन से अनएक्सपोज्ड हो गया, विच इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, लेकिन फिर भी पहले की स्थिति से काफी बेटर है। तो कौन सी एज वल्नरेबल है? अभी हमने ये 4 साल का केस देखा। एक उसके बाद जो हमारे पास सेकंड केस आया था वो 15 साल का बच्चा था। जरा स्कूल अभी स्टार्ट ही हुए हैं और वो बच्चे ने स्कूल से विड्रॉ कर लिया, उसको जाना ही नहीं है। स्कूल के नाम पे उसको बहुत एग्रेशन आता है, स्कूल में वो लड़ाई करता है। नहाना उसको नहीं था, खाना कुछ बाहर निकल के नहीं खाना, तो उसने एक तरीके से अपने आप को दरवाजे में अपने रूम में बंद कर लिया। एक चादर लेके वो ओढ़ के बैठा रहता था और वो पूरे टाइम स्क्रीन पर था। एकेडमिक क्रैश, स्कूल विड्रॉल, निग्लेक्ट ऑफ ऑल एक्टिविटीज, हाइजीन के अते पते नहीं, एग्रेशन जरूरत से ज्यादा। यहाँ पेरेंट्स थोड़े से उम्र दराज थे, आई मीन लेट चाइल्ड था, तो उनकी वो बहुत लाड़ प्यार वाली, जो पैम्परिंग वाली जो उनकी रियरिंग थी, तो वो बच्चे के साथ कुछ भी डिसिप्लिन नहीं ला पा रहे थे। तो बड़ा मुश्किल बच्चा हमारे सेंटर पे आया, लेकिन उस बच्चे को हम कितनी भी कोशिश करके बहुत अच्छे से रिटेन नहीं कर पाए। वो बच्चा आज तक उसमें जी रहा है, बिकॉज पेरेंट्स ने यहाँ अपना जो रोल प्ले करना चाहिए था वो हुआ नहीं। रात भर गेमिंग देखने के कारण मोटे मोटे चश्मे लग गए हैं एंड मेंटल हेल्थ की उसकी काउंसलिंग, लेकिन क्योंकि काउंसलिंग में सारे स्टेक होल्डर्स इक्वली पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे तो बहुत सक्सेसफुल नहीं है। केसेस आपने अपने घरों में फिर एक और नया केस आता है जो कि 9 महीने बच्ची का है। अब ये बच्ची को माँ हर समय मोबाइल देके रखती है, जब वो दूध पी रही है तो भी, क्योंकि अगर खाना खिलाना है बच्चों को तो फटाफट मोबाइल हाथ में दे दो या टीवी चला दो, विच इज अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस दीज डेज। माँ का कहना था, वेरी इंटरेस्टिंग, आप लोगों को मैं बताना चाहूंगी। माँ का कहना था कि मैडम, अगर बच्चे को हमने मोबाइल नहीं दिया तो हमारा बच्चा पीछे रह जाएगा। आजकल छोटे छोटे बच्चों को राइम्स आती हैं, वो इसीलिए क्योंकि वो पूरे टाइम मोबाइल पे रहते हैं। तो अब आप सोचिए, ये जो बच्चा 9 महीने की जो बच्ची है, जो पूरे टाइम अगर मतलब इतने टेंट्रम्स थ्रो करती है, अगर वो बच्चे को वीडियो मोबाइल उसके हाथ में नहीं दिया जाता, जस्ट बिकॉज उसको पैदा होते ही उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया गया, माँ के इस डर से कि कहीं वो बच्ची मेरी पीछे ना रह जाए बाकी उसके पीयर से। सो दिस इज अगेन वेरी अलार्मिंग एंड फॉर स्पेशली फॉर न्यू मदर्स। देन अब एक और बहुत इंटरेस्टिंग केस आता है। ये 16 साल की बच्ची हैं, इन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से सोशली विड्रॉ कर लिया। स्कूल बहुत मुश्किल से जाती हैं और कोई फ्रेंड्स नहीं, कोई कुछ नहीं, और इनका बॉयफ्रेंड है एआई कंपेनियन। क्यों? क्योंकि ये लोग सेफ हैं। एआई बॉयफ्रेंड बहुत सेफ है, वो जैसा मैं चाहती हूँ ऐसा करता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे मूड टेंट्रम से। वो जब जैसा मेरा मूड होता है मुझको वैसे चीयर अप करता है। तो ये एक नया अलार्मिंग चैप्टर ओपन हुआ है, एआई कंपेनियनशिप। आई एम सो सॉरी सर, माय थ्रोट इज वेरी बैड टुडे। सो ये 4 केसेस जब हमारे पास आए, इन्होंने हमें सोचने को मजबूर किया कि हम क्या कर रहे हैं और हम कहाँ जा रहे हैं। बेसिकली इन लोगों के जो भी सिम्टम्स थे वो हमने बहुत अच्छे से समझे और उनको पूरे को सम अप किया और देखा कि बच्चों के साथ प्रॉब्लम हो क्या रही है। क्योंकि
ऐसा लगता है कि एडोलेसेंट की कोई भी प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम है। सर नेक्स्ट स्लाइड। तो देखने में आया कि जो मैक्सिमम इन केसेस में हमने देखा कि अपने डिवाइसेस के ऊपर, या मतलब जो अर्ज थी डिवाइस को के साथ टाइम कंज्यूम करने की, उस पर कोई कंट्रोल नहीं था। कंपल्सिव चेकिंग थी, 2-2 मिनट में बच्चे फोन उठा के चेक करते हैं। इमोशनली डिस्ट्रेस थे, अगर उनके हाथ में फोन नहीं तो उनको इमोशनली डिस्ट्रेस हो रहे थे। उनकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब थी, उनको मोटिवेशन ही नहीं था कि कुछ भी और करें, और इस वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन होती जा रही थी। ऐसी कोई चीज आप लोगों ने देखी है? मैं जरूर सुनना चाहूंगी किसी से भी। ऐसी कोई चीज आपके घर में, पड़ोस में, आप में, खुद में, आपके पार्टनर में किसी ने देखी है? Yes, ma'am, I want to share something. जी सर। मैं अभी जो मेरे पास एक्चुअली फर्स्ट ईयर की क्लास है, जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, मैं उनको बोलता भी हूँ अक्सर। क्लास के ड्यूरेशन 40 मिनट की क्लास है, तो क्लास के ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 5 या 7 मिनट बाद उन्होंने अपना मोबाइल पे एक बार क्लिक करके देख लेना है जी। मैं उनको कई बार देखता हूँ, चाहे उन्होंने मतलब उसमें करना कुछ नहीं है, जस्ट मोबाइल को एक बार क्लिक कर लेना है। और मैं उनको क्लास में बोलता हूँ कि आप लोग अगर 40 मिनट बिना मोबाइल की तरफ देखे भी रह लेना तो वो भी एक बहुत सफिशिएंट रहेगा उनके लिए। तो ये मैं देख पा रहा हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट 4 साल बाद मैंने फर्स्ट ईयर क्लास ली, जो नए बच्चे आए हैं जी। पहले फाइनल ईयर तक उनको पास आउट करवाया। तो जो पिछली क्लासेस के बच्चे थे हालांकि बैठ लेते थे क्लास में एटलीस्ट, अब ये बहुत सारा मीन्स क्लास में अगर ज्यादा नहीं मैं कहूँ तो 60% स्टूडेंट ऐसे हैं, दे विल क्लिक द मोबाइल फोन एवरी 2 to 5 मिनट्स। ये उनका एक हो गया है। सर आपने अपने पीयर्स में देखा ये? आपने मतलब बच्चों में तो देखा, बट अपने पीयर्स में देखा? पीयर्स में भी डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द पीपल क्लास से आते ही अपना मोबाइल स्क्रॉल करेंगे। ऑब्वियसली उसमें एक ये कहें कि हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव कंपल्सन भी हो गया है कि कोई नया मैसेज तो नहीं आ गया ग्रुप में कॉलेज की तरफ से, या कोई नया टास्क तो नहीं असाइन हो गया है, वो भी है। और उसके अलावा अगर वैसे बैठे हैं तो फिर फेसबुक तो है ही है, वो तो थ्रू आउट चलता रहता है। जी जी जी। तो यही इंटरेस्टिंग हुआ सर, जब ये प्रॉब्लम्स ऐसे देखी गई तो एक हम लोग का भोपाल में एक डिस्कशन हुआ अमंग द काउंसलर्स, टीचर्स, कि अब प्रॉब्लम जितनी भी आ रही है, रिपोर्ट हो रही है, मैक्सिमम सबका कॉमन फैक्टर है कि डिजिटल ओवर स्क्रीन यूसेज। अभी हम ये कहें एडिक्शन है तो ये तो नहीं कह सकते क्योंकि हर बच्चे को एडिक्शन नहीं है, बट एडिक्शन से बहुत दूर भी नहीं है। तो अब हमारे पास कोई भी ऐसी चीज नहीं, कोई भी ऐसा टूल नहीं जिससे कि हम ये मेजर कर सकें कि बच्चे में अगर प्रॉब्लम है तो क्या है, कितनी सीवियर है, और उसका इंटरवेंशन क्या होना चाहिए। तो इन फैक्टर्स के हिसाब से, जैसे हमने जो बच्चों के अंदर कॉमनली देखा कि उन कंट्रोल नहीं कर पाते थे, बार बार चेक करते थे, इमोशनल डिस्ट्रेस था, डिस्टर्ब्ड स्लीप साइकिल थी, मोटिवेशन ही नहीं लग गया लाइफ में, प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हो गई। तो कहीं ऐसा लगा कुछ एक ऐसे स्ट्रॉन्ग टूल बनाना चाहिए जिससे कि हम बच्चों के ऊपर लगाएं, और या बड़ों के ऊपर या किसी के भी ऊपर लगाएं और देखें कि प्रॉब्लम है क्या। तो इस वजह से सर नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। हम लोगों ने एक टूल बनाया जिसको कि हम डिजिटल हेल्थ क्वेश्चनियर कहते हैं। बेसिकली ये देखने के लिए कि हम क्या डिजिटल एडिक्शन को मेजर कर सकते हैं, क्या हम ये देख सकते हैं कि हम उस पर कितना डिपेंडेंट हो गए, और कौन से एरिया में हमें सबसे ज्यादा हेल्प की जरूरत है। तो डिजिटल हेल्थ क्वेश्चनियर 500 स्टूडेंट्स पे लगाया गया और वैलिडेटेड और रिलायबल टूल है, जिसकी वजह से हमें बहुत राइट इंफॉर्मेशन मिलने लग गई और हमारे काउंसलिंग के इंटरवेंशंस अकॉर्डिंगली होने लग गए। पर डिजिटल हेल्थ क्वेश्चनियर में भी जब तक आपकी ऑनेस्टी बहुत, अगेन जिस किसी भी क्वेश्चनियर में जैसे ऑनेस्टी होती है, उसमें भी यही है कि आपको बहुत एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सोच समझ के करना पड़ता है, राइट आंसर्स देने पड़ते हैं। एक 1995 में एक टूल बना था
एडिक्शन का, इंटरनेट एडिक्शन, यंग्स का ये टूल है। उसके बाद हमारी नॉलेज में तो कोई भी इस प्रकार का टूल नहीं बना था, क्योंकि हम उस समय बहुत फाइंड आउट कर रहे थे। अगर आप लोगों को कोई मालूम है तो जरूर बताइएगा। अदरवाइज अगर आपकी क्लास में या आप लोग इस चीज से प्रॉब्लम में हैं तो ये क्वेश्चनेयर आप यूज करें। मैं चाहूंगी कि आप लोग खुद के ऊपर भी एक बार अप्लाई करें। तो मुझे अगर कहीं शेयर करने की जगह मिलेगी तो मैं उसका लिंक शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। तो इट हैज नथिंग टू डू विद द एज, इट हैज टू डू टू अंडरस्टैंड कि हमारी डिजिटल हाइजीन कैसी है या डिजिटल हेल्थ कैसी है। सो इस जब हमने इसको लाइक अप्लाई किया तो आपको, मैं अब आपसे नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। आप लोगों से मैं इन सब एरिया में से ये पूछना चाहूंगी, ये जो हमारा ये डिजिटल हेल्थ क्वेश्चन है ये इन सब एरियाज को टैप करता है, लाइक इम्पेयर्ड कंट्रोल, यानी जहां पे कि आप अपने डिजिटल एंगेजमेंट को रोक ही नहीं पाते। क्रेविंग, जहां पे आपको उसको यूज करने की क्रेविंग होती रहती है। इमोशनल डिस्ट्रेस, जहां पे कि फीलिंग्स नेगेटिव होने लगती हैं अगर आप कनेक्ट नहीं करें तो लोगों के साथ। सोशल इंपेयरमेंट, यानी अकेले और अपने रिलेशनशिप सब कॉम्प्रोमाइज होने लगती हैं, हम और हमारा मोबाइल। देन देयर आर सोमैटिक सिम्टम्स, यानी कि फिजिकल कंप्लेंट्स, सर दुखना, गर्दन दुखना। देन काफी लोगों को तो बच्चों को शुरू बचपन में ही देखिए थोड़ा सा कुबर टाइप का भी आने लग गया है। इसके अलावा आईज में प्रॉब्लम होना और फिर प्रोडक्टिविटी भी डिक्लाइन होने लगे, यानी कि ना तो वो घर पे, कॉलेज में, स्कूल में, गेम्स में, हॉबीज में, कहीं भी प्रोडक्टिविटी उनकी उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। तो अगर हम बात करें इन सब में, आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा डिफिकल्ट या सबसे ज्यादा हार्मफुल या सबसे ज्यादा डेंजरस कौन सा एरिया होगा आउट ऑफ ऑल दिस 6 एरियाज? प्लीज कोई तो बताएं। श्रेया कहती है फिजिकल कंप्लेंट्स। ओके, एनीवन एल्स? इमोशनल डिस्ट्रेस हो सकता है मैम। यस सर, सुजल ने हाथ रेज किया है, अगर हम अलाउ करें उनको बात करने के लिए। Suman Lata is also saying emotional distress. Sujal, you want to speak something? आप अपना माइक ऑन करके बात कर सकते हैं क्या? जब तक सुजल बात करें बाकी लोग बताएंगे। 2 लोग इमोशनल डिस्ट्रेस कह रहे हैं। श्रेया सोशल इंपेयरमेंट एंड इमोशनल डिस्ट्रेस कह रही हैं। ओके, impaired control, yes. Emotional distress, productivity decline. Okay. मेजरली कोई भी आंसर गलत नहीं है, क्योंकि सारे ही एरियाज में अगर प्रॉब्लम है तो दैट इज अ प्रॉब्लम। यस, डेफिनेटली इम्पेयर्ड कंट्रोल, बिकॉज तब आपको, आप कंट्रोल नहीं कर रहे हैं आपके डिवाइस को, बट आपका डिवाइस आपको कंट्रोल करना शुरू कर चुका है। और उस केस में आप इमोशनल डिस्ट्रेस में हैं, आप सोशल इंपेयर्ड हैं, फिजिकल सिम्टम्स डेफिनेटली आपकी बॉडी शो कर रही होगी, आपके अंदर क्रेविंग्स हैं और आपकी प्रोडक्टिविटी बिल्कुल डिक्लाइन हो चुकी है। तो दिस इज द मोस्ट अलार्मिंग स्टेट विच इज इम्पेयर्ड कंट्रोल, चाह के भी रोक ना पाना। ये वही ड्रग्स वाले केसेस हो गए। और ये जो हमारा DHQ है, डिजिटल हेल्थ क्वेश्चनेयर, ये DSM में जो गेम एडिक्शन और एडिक्शन के क्राइटेरिया पर ही बेस्ड है। तो वहां से भी इम्पेयर्ड कंट्रोल, वहां पे भी ड्रग्स में भी, आप अगर इसको ड्रग्स से रिलेट करेंगे तो इम्पेयर्ड कंट्रोल इज द मोस्ट अलार्मिंग। जब आप घर से पैसा चुरा के, किसी को भी कुछ भी करके आपको ड्रग चाहिए, आपको नहीं परवाह लोग क्या है, कहाँ है, कैसे हैं, आपका क्या काम करना है, क्या नहीं करना, बस इट इज योर डिजायर टू अटेन जो आपकी चाह उस समय बन गई है। डॉक्टर मोदी और बड़े बड़े खड़ा
अंजलि जी क्या कहना चाह रही हैं? इंटरेस्टिंग जब हुआ कि जब हमने बच्चों से जब हमने ये बातचीत बच्चों के साथ करी, उनके साथ उनके रिजल्ट शेयर करे, क्योंकि हम देख रहे थे कि इसमें जब हम DHQ लगाते हैं, डिजिटल हेल्थ क्वेश्चनर, ये एक हमारा इंटरवेंशन हुआ जब हमने बच्चों से पूछा कि सबसे ज्यादा डिफिकल्टी उनको क्या आती है रोकने में, तो उनका आंसर था फियर ऑफ मिसिंग आउट। यानी वो दे वर सीकिंग फॉर वैलिडेशन। उनको ऐसा लगता था पता नहीं क्या गुजर जाएगा इंस्टाग्राम्स पे और वो जो जिससे कि अगर उन्हें पता नहीं लगा कि उनके फ्रेंड्स की लाइफ में क्या चल रहा है तो वो कहीं बहुत पीछे ना रह जाए। तो बेसिकली DHQ हमारा जो है वो 4 एरियाज में कवर करता है। एक तो लो एडिक्शन, एक मॉडरेट, देन हाई एंड देन वेरी हाई। तो जो लो वाले हैं अभी फिलहाल हम कह सकते हैं कि वो सही है लेकिन कब लो वाले भी हाई में चले जाएंगे पता नहीं। सबसे ज्यादा अलार्मिंग स्टेज है मॉडरेट वाली, जो बिल्कुल हाई के पास जाने के लिए बैठे हुए हैं तत्पर। अगर उनको इसी समय हम लोगों ने कुछ तरीके से इंटरवेंशंस प्रोवाइड नहीं किए तो ये वाली पूरी जनरेशन विच वाज 82% अमंग, कम से कम जब हमने असेसमेंट किया था तो 85% हाई, मॉडरेट टू हाई में आ रहे थे। मतलब हाई की तरफ जा रहे हैं, यानी 85% भी बहुत जल्दी हाई में चले जाएंगे अगर इनके साथ काम नहीं किया गया तो। सो आपको लगता है ये अलार्मिंग है या ओके ठीक है दूसरे की प्रॉब्लम, मेरे घर में थोड़ी हो रही है? क्या लगता है, अलार्मिंग है? यस मैम, डेफिनेटली अलार्मिंग है ये। पर फिर हम क्या कर रहे हैं? आपको लगता है ये अगर हमें ये सारे एरियाज में पता लगे कौन सा बच्चा किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है तो हम कुछ कर पाएंगे? एक्चुअली इट इज वेरी डिफिकल्ट कि कुछ कर पाएंगे अनटिल और अनलेस फैमिली इन्वॉल्व नहीं है। इवन जैसे आपने कहा कि ड्रग्स के केस में भी मतलब बहुत कम हद तक कुछ कोई कर पाता है। एब्सोल्युटली। तो एज अ टीचर्स हम लोगों का, एज अ काउंसलर्स हम लोगों का कुछ तो रोल होगा। हम लोग अपनी आंखों के सामने ये चीज होते हुए देख रहे हैं कुछ तो रोल होगा ना हम लोगों का। फर्स्ट तो मैम ये है कि अवेयरनेस बच्चे को या किसी को भी अवेयर कर सकते हैं, क्योंकि बहुतों को शायद अवेयरनेस ही नहीं है कि वो मतलब किस स्टेज पे हैं और कभी भी जो है वो मॉडरेट से, जैसे आपने कहा, हाई की तरफ जा सकते हैं। तो फर्स्ट जी, स्टेप तो अवेयरनेस है कि एब्सोल्युटली। उनको अवेयर कराया जाए और इसके क्या आगे रिपरकशंस हो सकते हैं उसके बारे बिल्कुल, में उनको अवेयर कराया जाए। दैट इज द मेन एब्सोल्युटली। थिंग। उनको अवेयर कराने से पहले ये जरूरी है कि हम लोग खुद अवेयर हों। यू वेरी राइट संजय सर। उन पर हम लोग खुद अवेयर हों कुछ सिम्टम्स से। तो मैं वो इन सिम्टम्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि आपको क्लासरूम में या अपने घरों में कैसे एक्टिवली ये चीज का ध्यान रखना है। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये तो सर इसके अलावा नेक्स्ट स्लाइड। सो रियल सबसे पहले अगर आप जागरूकता के साथ हम अपनी क्लास में अलर्ट, मतलब बच्चों को ऑब्जर्व करते हैं। कुछ बच्चे अगर हमें इस प्रकार से दिखते हैं जो आपको लगता है कि बहुत ज्यादा स्लीप, मतलब ऐसा लगता है कि इनकी नींद पूरी नहीं हुई, कहीं देख के लगता है शायद रात भर जगे होंगे। एक अलार्मिंग सिचुएशन है। बच्चों का फोकस नहीं आ रहा क्लास में, अलार्मिंग सिचुएशन है। जरूरत से ज्यादा इरिटेबल हो रहे हैं, अलार्मिंग सिचुएशन है। अपने आप को सोशली विड्रॉ कर रहे हैं, आपसे भी नहीं बात करना चाह रहे हैं, बाकी पीयर्स से भी बात नहीं करना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली अलार्मिंग सिचुएशन है। तो एटलीस्ट अगर ये 4 कैटेगरीज हमें क्लासेस में दिखती हैं कि बच्चा नींद में है, फोकस नहीं है, चिड़चिड़ा हो रहा है, सोशली विड्रॉ हो रहा है, बहुत ही शैबी लुक्स में क्लास में आ रहा है, अनअटेंटिव है क्लास में पूरी टाइम, तो कहीं ना कहीं उस बच्चे के साथ कुछ भी ठीक नहीं है। और आज अगर मैं कहूं 80% टाइम्स उनका प्रॉब्लम डिजिटल मीडियम पे ही देखा जा रहा है। तो ये कुछ एरियाज हैं जहां पे कि अगर हम
सतर्क रहें तो ये देख सकते हैं, ये रेड फ्लैग्स हैं जिनको पकड़कर हम आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। तो आप इसके बाद पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, आप डेफिनेटली फाइंड आउट कर सकते हैं उनके पेरेंट्स से कि भाई क्या चल रहा है, ये हमने रेड फ्लैग्स देखे हैं कुछ, क्या चल रहा है। किसी आपको पैटर्न अगर परसिस्ट पैटर्न लगता है कि भाई ये एवरीडे की कहानी होती जा रही है, तो आप खुद भी कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं बच्चे के साथ, आप फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं है तो फिर डेफिनेटली आप रिफर कर सकते हैं। रेफरेंस इज द बेस्ट प्रैक्टिस, एटलीस्ट अवेयर टीचर कैन डू। आई अंडरस्टैंड कि हम लोग सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम रेफर कर सकते हैं। सो बच्चों को कौन सी चीज में नहीं चाहिए, मतलब उनको इमोशनली अगर वो रेगुलेट नहीं हो पा रहे हो, स्लीप में करेक्शन नहीं है, हर जगह अगर आप उनके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ देखते हैं तो प्लीज उनको रेफर कीजिए, प्लीज सतर्क होइए। इट इज द हाई टाइम, द जनरेशन अदरवाइज 230 तक पहुंचते हुए आई एम वेरी वेरी मच श्योर कि हम कंट्रोल नहीं करेंगे डिजिटल मीडियम्स को, डिजिटल मीडियम्स विल स्टार्ट कंट्रोलिंग आवर जनरेशंस, आवर यूथ, एंड वी डू नॉट वांट टू सी दिस फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री, नॉट एट ऑल। तो बहुत कॉमन जी। Sorry to interrupt, ma'am, but we teachers, we ourselves are forcing students to use, for example, we use teaching based upon ICT tools. So what about that, ma'am? If they don't want to use these digital, but we are forcing them, we are pushing them by teaching using this. Ma'am, you're very right, and this is something which is need of the hour as well. So ये टेक्नोलॉजी का प्लस पॉइंट है। We are not forcing them. It has become our, it is something which is mandatory कि हम जो हमारे सारे communications है या हमारे educational plans है, वो सब हम वहाँ हमारे को डिजिटल मीडियम पे अवेलेबल हैं। हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो एडिक्शन का है, और पढ़ाई से कभी एडिक्शन नहीं होता। किसी बच्चे को पढ़ाई से एडिक्शन नहीं हुआ है। अगर आप ये सारी प्रॉब्लम देख रहे हो, स्लीपलीनेस, इरिटेबिलिटी, आपको पढ़ाई की वजह से नहीं हो रही है, या जो आप मैटर उनको दे रहे हैं उनकी वजह से नहीं हो रही है। ये प्रॉब्लम ये हो रही है जब वो बच्चे फोमो में हैं, जब वो बच्चे इमोशनली अनरेगुलेटेड हैं, ओवर टाइम वो डिपेंड कर रहे हैं सोशल मीडियाज पे, तब ये प्रॉब्लम हो रही है। सो हम ये तो कह ही नहीं सकते, मैंने शुरू में ही बताया था, बोला था, टेक्नोलॉजी इज अ फ्रेंड टू अस, इट इज नॉट बट इट इज बिकमिंग अ एनिमी टू अस। सो हमको उसको सही यूज बात करना चाहिए, डिजिटल हाइजीन की बात करनी चाहिए बच्चों को। हम इसको खत्म कर दें अपनी लाइफ से, वो तो पॉसिबल ही नहीं होगा। बस बच्चे जैसे कि ड्रग्स से एडिक्टेड हैं, अब ड्रग्स भी अगर आप देखें दवाइयां बनाने का भी काम करता है, तो ऐसा हम नहीं कहेंगे कि ड्रग्स ही नहीं आएंगे, लेकिन उनका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, दैट इज अ चैलेंजिंग थिंग। ड्रग के नशे में आपको ड्रग कोई बच्चा लिया हुआ है, वो आपको दिख जाएगा कि वो ड्रग्स में है, वो दवाई वाला ड्रग में नहीं है, दैट इज इन अनदर ड्रग, सो इंटॉक्सिकेटेड है। So there we take such interventions. थोड़ा सा मैं प्रीति मैम की बात को ही थोड़ा सा आगे लेके जा रहा हूँ। जी मैम, जी सर प्लीज। आपने ये ठीक कहा कि एक एजुकेशनल पर्पज के लिए अलग चीज है, बट जैसे स्कूल लेवल पे ही बच्चा बहुत अभी छोटा होता है, जब उसको हर एक चीज, मैं अपने बेटे का देखता हूँ, हर एक चीज उसको स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पे ही आ रही है, और उसको अगर हम बोलें भी कि मोबाइल नहीं यूज करना है, वो कहता है कि ये आ रहा है, उसके 5-7 ग्रुप बने हैं, ये आ रहा है, वो आ रहा है, और साथ में क्या कि उसके जो फ्रेंड्स के ग्रुप हैं उसमें भी चीजें आती हैं। तो हम खुद भी हालांकि देखते हैं कि कई बार हमने मैसेज कोई चेक करना होता है और दूसरी तरफ को कोई और आता है, तो हम एक्चुअली जिसको बोलते हैं डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन तो डेफिनेटली है। तो एक्चुअली क्या है कि वही बात है कि बच्चा जब तक उस स्टेज पे पहुंचता है, जब तक उसको समझ आती है, उससे पहले ही वो एडिक्शन वाली स्टेज में तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये चीज लेके जा रही है। जब हम एक्सेसिवली आज की डेट में देखा जाए कि बच्चे का बहुत सारी चीजें जो है व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू ही आ रहा है जी। अब जाहिर सी बात है, बच्चा ऐसा तो नहीं कर सकता ना कि वो स्कूल वाला ग्रुप देख रहा है लेकिन अपने फ्रेंड्स वाला नहीं देखे। व्हेनेवर जब वो, हम भी हालांकि जब भी हम व्हाट्सएप पे लॉगिन करते हैं तो हम थोड़ी सी हमारी मेच्योरिटी है कि हम एक ग्रुप देख के जो है उसको दूसरे को इग्नोर कर सकते हैं, मे बी ड्यू टू अर्जेंसी ऑफ द वर्क और लाइक दैट। लेकिन बच्चे के पास नहीं है ना ये चीज, वो डेफिनेटली टेम्प्ट तो हो जाएगा, उसने अगर स्कूल का ग्रुप देखना है वो देखा, उसके बाद अपने फ्रेंड्स का, और इसी तरह से मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा
एक्सेस की तरफ तो वहीं से जा रहा है। एब्सोल्युटली सर। मतलब इसीलिए ये थोड़ा सर सा सबसे पहला तो यही है कि हम लोग ये इस चीजों से अवेयर हो कि खतरनाक ग्लिम्स सिचुएशन है, और अब इसके लिए पॉलिसीज कैसे बननी है, चाहे वो नेशनल गवर्नमेंट लेवल पे हो, चाहे वो काउंसिल्स लेवल पे हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी लेवल पे हो, हम सबको उसके लिए कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो इट इज समथिंग विच शुड बी अ नेशनल एजेंडा बाय द वे। इट इज नॉट समथिंग कि मैं और आप हम एक सेशन में बैठ के ये कुछ भी इनके आंसर्स ले पाएंगे, क्योंकि बहुत बहुत कुछ इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग की जरूरत है। आप देखिए टेक्नोलॉजी ने इतना समझदारी तो करी है, जितने भी बच्चों के एड्स होते हैं या बच्चों के राइमिंग वाले जितने भी यूट्यूब चैनल्स होते हैं, इतने कलर्स के साथ अट्रैक्टिव बनाते हैं कि वो उसकी नजर ही नहीं हटती उनसे। तो कहीं ना कहीं ये साइकोलॉजी तो रीड कर रहे हैं ना हमारे बच्चों की या हमारी। सो जब अगर वो ऐसा कर सकते हैं तो हमें कुछ ऐसा भी करना पड़ेगा, उसका तोड़ हम ही लोगों को मिलजुल के सबको निकालना पड़ेगा। आज तो मैं सिर्फ आपके सामने पेश कर रही हूँ कि सिचुएशन कितनी ग्लिम है। अब हमको सबको मिलके बहुत कुछ करना चाहिए। कहाँ तक बात ले जानी है आप लोग सब समझते हैं, हमें वहां तक जाना ही पड़ेगा। सो हमारा एम बिल्कुल भी यही नहीं है कि हम बच्चों को कंट्रोल करें या खुद को कंट्रोल करें, बट सिर्फ इतना है कि एम्पावर हो कि हमारे डिजिटल डिवाइसेस हमें कंट्रोल ना करें, बल्कि हम उन्हें कंट्रोल करें। सो दिस इज व्हाट आवर fight or understanding or whatever we can understand is that. So next slide पे please. So कुछ अगर जैसे मैंने बोला हमारे लो मॉडरेट रिस्क में, हाई रिस्क में, DHQ से हमारे पास जब रिजल्ट आते हैं तो इन 3 कैटेगरीज में बच्चे फॉल करते हैं, लो से मॉडरेट में, हाई रिस्क में और सीवियर रिस्क में। लो से मॉडरेट रिस्क में हमारे पास कुछ लाइक फर्स्ट एड टाइप्स के मॉड्यूल्स हैं जो कि हम बच्चों के साथ एक्टिविटीज करते हैं और उनको सोचने पे मजबूर करते हैं कि जो हम ये कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, और जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना बेटर रहेगा। हाई रिस्क में काउंसलर्स का इंटरवेंशन होना इंपॉर्टेंट है, और सीवियर रिस्क में तो डेफिनेटली जैसे ड्रग्स में हमें बहुत रिहेबिलिटेशन का टाइप करना पड़ता है, वैसे ही इस केस में भी हमें रिहेबिलिटेशन के टाइप ही कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि अभी आउट ऑफ 500 स्टूडेंट्स जो हम लोगों ने DHQ डिजिटल हेल्थ क्वेश्चनियर लगाया था, 15 बच्चे सीवियर रिस्क में दिखे हैं। 15 स्टूडेंट्स आर इन सीवियर रिस्क, जिनके लिए ड्रग्स के रिहेबिलिटेशन है, इन सबके रिहेबिलिटेशन है, लेकिन डिजिटल एडिक्शन का कोई रिहेबिलिटेशन अभी तक नहीं है। तो इट इज समथिंग सारे स्टेक होल्डर्स को मिलके बैठ के और बात करनी पड़ेगी। लेकिन जो बच्चे लो और मॉडरेट रिस्क में हैं, उनके साथ डेफिनेटली टीचर्स इंटरवेंशंस प्लान कर सकती हैं। उनके साथ डेफिनेटली एक्टिविटी बेसिस कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस किए जा सकते हैं, जिससे कि हम उन्हें हाई रिस्क में और सीवियर रिस्क में जाने से बचाएं। सो ये हमारा प्रयास है, ये एक्ट टू एनेबल का प्रयास है। आई एम श्योर हम सब मिलके कोई और भी प्रयास करेंगे तो पॉसिबल हो पाएगा। गुलशन सर ने कोई लिंक शेयर किया है, आई डोंट नो, फीडबैक फॉर्म, ओके। तो मेरी तरफ से तो अभी हम लोग कुछ सर नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे प्लीज। हम लोगों ने इतने सारे प्रॉब्लम्स अपने यहाँ आए, उसके बेसिस पे और भी कुछ प्लान्स बनाए थे, और भी कुछ मॉड्यूल्स बन करे थे, क्योंकि वो जितने छोटे बच्चे रिस्क में उतने ही हमारे सीनियर सिटीजन्स रिस्क में, वो फ्रॉड्स में हैं। मैक्सिमम सारे फ्रॉड्स उनके साथ होते हैं, मैक्सिमम सारी जितनी भी ट्रैपिंग होती है उन लोगों के साथ होती है, तो उतना ही वल्नरेबल ग्रुप वो भी है। तो देयर इज नो वन वल्नरेबल ग्रुप, इट इज द होराइजन एट बोथ द एंड्स, और हम लोग सब मिलके। सर नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे प्लीज। सो ये मेरी तरफ से सबमिशन है, जो मैं आपको बताना चाह रही थी। वो अपने जितने भी हमने कोशिश करी है, हम लोगों ने आपके साथ शेयर किया है, बट बहुत सारा काम अभी और करना जरूरी है। ये कुछ कोर्सेज हम लोगों ने और बनाए हैं, जिसमें ऑसम डिजिटल यूथ जो 16 से 25 इयर्स के बच्चों के लिए हैं। देन स्किल बेस्ड सेशंस हैं, उनके लिए हमारा काउंसलिंग सपोर्ट रहता है। रिस्पॉन्सिबल डिजिटल सिटीजनशिप्स का हम लोगों का एक कोर्स है, जो कि हम अपना तरफ से प्रयास करते जा रहे हैं। भोपाल पे हम लोग काम कर रहे हैं, बट डेफिनेटली काम और भी शहरों में होना जरूरी है। सो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप अपने डिजिटल हेल्थ देखें, तो हम फॉर्म्स शेयर कर सकते हैं। आप लोग उसको ऑनेस्टी के साथ भरेंगे तो हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे कि आपकी कैसी डिजिटल हेल्थ है। तो प्रीति मैम इज सेइंग शी डज नॉट वांट टू डू
एंड पूजा जी भी नहीं देखना चाहती हैं, बट विशाल जी देखना चाहते हैं. सो ऐसे लास्ट स्लाइड प्लीज. No, no, ma'am. It's no for that. That Google form is not responding. ओके. So yeah, this is about us. अगर आप लोग हमें मिलना है या हमें देखना चाहते हैं तो these are the areas. यदि ये आप स्कैन करना चाहें तो स्कैन कर सकते हैं. हमारे QR कोड्स हैं. और मैंने आज आपके साथ आज आपके साथ डिस्कस किया है हमारी पिछली 2-3 साल की जर्नी के बारे में और एक नई वेरी अलार्मिंग सिचुएशन के बारे में. And with this note, I really want to say thanks to you, all of you being a patient listeners. और सचिन सर, thank you so much. आपने डिजिटल हेल्थ क्वेश्चनियर को वैलिडेट किया, उससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा है एंड हम उसको नेशनल लेवल पे ट्राई करने के लिए रेडी हैं. मैम एक कोई क्वेश्चन था. ये जो इस वाले स्लाइड में इंटरवेंशन पाथवेज में जो आपने बॉटम में 4 चीजें लिखी हैं, 1 मिनट में दी हमारे ऑडियंस को थोड़ा सा उसका आइडिया दी. जी, जो बेसिकली जो मैं बात कर रही हूँ फर्स्ट एड की या फर्स्ट एड जो लो से मॉडरेट रिस्क में जा रहे हैं बच्चे, उसमें हम डिजिटल फर्स्ट एड देते हैं या उनकी हैबिट जो डेवलप हो गई है उसको रीस्ट्रक्चर करने की कोशिश करते हैं. तो उसके लिए हमने कुछ डिजिटल एजुकेशनल रिसोर्सेज बनाए हैं. बेसिकली जिनको डिजिटल माइंडफुल बनाना कि वो अपनी डिजिटल हैबिट्स को समझें, अवेयर हों. फिर अगर वो हैबिट गलत है तो उसकी रिवायरिंग शुरू करें, यानी कि अनहेल्दी डिजिटल बिहेवियर को कंस्ट्रक्टिव ऑल्टरनेटिव्स के साथ हम लोग बदलने की कोशिश करते हैं. फिर स्लीप हाइजीन प्रोटोकॉल, डेफिनेटली उनका एक सबसे इम्पॉर्टेंट उनकी रात की नींद पूरी होना, तो इस्टेब्लिश कराने में मदद करते हैं कि आप अपना एक प्लान, पूरा डे का प्लान इस हिसाब से करें कि आप पूरा अपना 9 आवर्स की या 8 आवर्स की स्लीप पूरे अच्छे से लें, जिससे कि आपका नेक्स्ट डे फ्रेश हो और आप एक हेल्दी माइंडसेट के साथ आप नेक्स्ट डे शुरुआत करें. एंड वैल्यूज और आइडेंटिटी बेस्ड काउंसलिंग की जो वैलिडेशंस है, जो हमारे लाइक्स हमें हमारे उस पे मिलते हैं, दैट इज नॉट अ वैलिडेशन, या वो हमारे आइडेंटिटी के क्राइटेरिया में कहीं भी फॉल नहीं करते. तो उन अलाइनिंग उन डिजिटल यूज और इन सबको पर्सनल वैल्यू और गोल्स हमारी लाइफ को ब्रॉडर रीजन पे क्या है उनके साथ अलाइन करने की कोशिश करते हैं. तो ये हमारा फर्स्ट एड में है बच्चों के साथ हम लोग जिस पे काम करते हैं. फॉर हाई रिस्क एंड सीवियर रिस्क या डेफिनेटली सीवियर काउंसलिंग इज रिक्वायर्ड, बट ये जो लो से मॉडरेट है ये टीचर्स भी बहुत आराम से कर सकते हैं. सो हमारे जो एजुकेटर्स हैं दे कैन वेरी वेल एंड वेरी इजीली डू ऑल दीज थिंग्स. एनी पॉइंट which should be discussed? मैम, क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट को ये सजेस्ट कर सकती है कि हर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या प्राइवेट इंस्टीट्यूट में काउंसलर की पोस्ट हो, सो दैट स्टूडेंट्स कैन डिस्कस देयर प्रॉब्लम्स विद देम? मैम, लास्ट 20 ईयर से हम एवरी ईयर ये सब बातचीत करते हैं. और काउंसलर भी एक नहीं है मैम, काउंसलर्स भी करियर काउंसलर्स अलग रहते हैं और काउंसलर्स अलग होते हैं, एंड काउंसलर्स अलग होते हैं, स्पेशल एजुकेटर्स अलग होते हैं. तो अभी तो यही हो रहा है कि खाना पूर्ति एक बंदे से ही सारा काम करा लिया जाए. यस मैम. Yes, ma'am. Ma'am, you are quite right about it. This was quite informative session, and I think we need more such counselors rather than counselors who guide for career and other things. More than this is how to motivate the youth and keep them away from the menace of like drugs and this digital engagement. Not in a good way. It has affected the generation, our next generation, a lot. So I think we need such counseling sessions more and more. Thank you, WRS College Dehri, for organizing such a beautiful session. And we also hope to organize a session in our college. You have given us motivation and inspiration. Thank you so much. मुझे लगता है कि 2-3 जो कोर मैसेजेस हैं मैं उसको सिर्फ रीएम्फसाइज करूंगा. एक तो ये कि डिजिटल यूसेज जो है वो समस्या नहीं है, डिजिटल एडिक्शन समस्या है, वो मैम ने हाईलाइट किया. चिंता इसी बात की है कि कहीं डिवाइस हमको ना यूज करना लग पड़े.
उसके लिए जो रेड फ्लैग्स हैं उसको पहचानें और उसके लिए इंटरवेंशन कुछ प्लान करें। तो अभी हमारे जैसे एक साथी ने कहा कि आपको लगता है कि इस विषय पे अपने महाविद्यालय में भी कुछ करेंगे, तो मुझे लगता है हमारा ये कार्यक्रम इसी बात से सफल है कि आपको लगता है कि इस विषय पे और आगे बात होनी चाहिए। ये अवेयरनेस जो है वो बहुत ही क्रिटिकल है, और अवेयरनेस काफी नहीं है। जैसा इन्होंने कहा, DHQ जो है आपको अवेयरनेस से अंडरस्टैंडिंग की तरफ ले जाता है और इंटरवेंशन के लिए इंस्पायर करता है। तो आप एक बार अवेयर हैं, आप को लगता है कि उस पे कोई कुछ काम करने की जरूरत है, तो मुझे लगता है इस सेशन का यही उद्देश्य रहा है। और ये जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें भी कोई मॉड्यूल, कोई टूल, कोई मैनुअल अवेलेबल नहीं है। दिस इज जस्ट ए नेसेंट बिगिनिंग, और गोइंग फॉरवर्ड हम लोग बहुत कुछ प्लान कर रहे हैं भोपाल में आने वाले दिनों में। तो लेट अस सी हाउ इट टर्न्स आउट टू बी। सो मेरी तरफ से तो अभी इतना ही है। कामाक्षी जी, यू कैन टेक ओवर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आई थिंक इतने सारे मैसेजेस पढ़ के आपको ऑलरेडी अंदाजा हो गया है कि आपका ये सेशन कितना फ्रूटफुल रहा है। And I was so happy to see a number of participants joining today from so many diverse fields, from students to educators and faculty people, so many people, because I think sabhi ko ye samasya lagti hai. Digital addiction, everybody realizes that this is a problem, but we know and still we are into it. और ये सिर्फ एक एज ग्रुप की समस्या नहीं है, जैसे आपने कहा। जब आप शुरू में पूछ रहे थे कि आपके आसपास कोई ऐसा है जो मतलब आपको लगता है कि डिजिटली एडिक्टेड है, तो मुझे तो सबसे पहले अपनी मम्मी ही याद आई। मतलब उनके भी सीरियसली यहाँ पे एक वो हम बन गया है, एंड आई कीप ऑन पैटिंग कि मम्मा इसको सीधा करो, ये फोन देख देख के आपका ये हाल हो गया है। बट कहीं ना कहीं देन वी रियलाइज कि देर आर मेनी रीजंस आल्सो बिकॉज ऑफ दिस। मतलब इस चीज के लिए बहुत सारे रीजंस भी तो रिस्पॉन्सिबल है ना। जो अकेले रहते हैं उनको लगता है कि फोन हमारा एक सहारा है। अगर डिजिटल बॉयफ्रेंड हो सकता है तो दैट मीन्स कि AI कंपेनियन अगर आपके पास है तो यू फील सिक्योर कि हाँ ठीक है। पेरेंट्स चिल्ड्रन, छोटे बच्चों की अगर बात करते हैं तो मम्मा को काम करना है तो बच्चे को फोन पकड़ा दिया, खाना खिलाना है। मेरा अपना बेटा, आई थिंक कि दादी ने उसको ऐसी आदत डाल दी थी कि बिना फोन देखे वो खाना ही नहीं खाता है। आज भी उसका यही हाल है कि वो टीवी के सामने बैठेगा वो तभी खाना खाएगा, वो सबके साथ बैठ के खाना ही नहीं खाता है। और हम जितनी मर्जी कोशिश कर रहे हैं लेकिन हम फिर भी उसको बदल नहीं पा रहे हैं। तो ये चीजें सोसाइटल स्ट्रक्चर में जो डिफरेंसेस आए हैं, बेसिक डिफरेंसेस आए हैं, उसकी वजह से भी तो हुई है ना। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का ही इफेक्ट नहीं है, हमारे सोशल चेंजेस का भी इफेक्ट है कि ये सब कुछ हमें देखना पड़ रहा है। और इसके लिए यस, हम लोगों को ही अवेयर होना पड़ेगा। हम लोगों की जनरेशन एज एजुकेटर्स, हमें अपने बच्चों में, अपने स्टूडेंट्स में, अपने आसपास फैमिलीज में, सोसाइटी में ये सब चीजें नोटिस करके हमें ये जरूर देखना पड़ेगा कि हम इसमें हेल्प आउट कर सके। लेकिन ये जो इंटरवेंशन स्ट्रैटेजीज है इनके बारे में मैं भी कुछ ज्यादा जानना चाहूंगी कभी किसी और मौके पे आपसे, अगर वो पॉसिबल हो तो। आज के लिए मैम थैंक यू सो मच कि आप हमारे साथ जुड़े। आपका डिजिटल हेल्थ क्वेश्चनर जैसे हमने अपने कॉलेज में यूज किया है, आप उसको नेशनल लेवल पे भी यूज करें, कुछ अच्छे रिजल्ट के साथ आए, और किसी पॉलिसी को अगर हम अफेक्ट कर सके, जैसे आपने कहा जैसे आप 20 साल से कोशिश कर रहे हैं, अगर कुछ पॉलिसी में सच में फर्क पड़ता है हम लोगों के इंटरवेंशन की वजह से, तो विल बी सो हैप्पी अबाउट इट। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। Thank you so much. Thank you for your kind words. Thank you all for joining, and feedback link is already working. I have received responses, many of them. अगर फिर भी किसी को नहीं मिलता है तो प्लीज सेंड एन ईमेल, आई विल सेंड द फीडबैक लिंक अगेन। Thank you, ma'am, and thank you, dear attendees from different colleges. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am.